very good morning to all of you class. So today is our second class relating with the biology class 9. Now, before starting our class, there are some instructions that I want to share with you. The instructions are: be punctual, keep your copy or pen, pencil or sectors with yourself to note down the important terms, definitions and important point as well. Okay, so the best of luck class to you. Now we will focus towards the chapter number 1 relating with the bio, ninth. The name of the chapter is the Introduction to Biology. I know this is the second class of the biology relating with the class 9. So what's the name of the chapter? The name of the chapter is the Introduction to Biology. Okay, now we will focus towards two specific topics of this chapter, which is the introduction of biology. Introduction to biology. So the first subtopic relating with this one is the relationship of the biology with different other sciences, and the second one is the career in biology. Okay, I hope it is clear to you class. Now here we will focus towards that the first one is the relationship of biology with the other sciences, as well as we will focus towards the second topic as a subtopic, which is the careers in biology. Okay, relationship first one है आपका relationship of biology means biology का relationship ये हम describe करेंगे with other sciences, किस तरह से दूसरे sciences यानी कि subjects के ऊपर आपके पास जो है reflect cause करता है biology means उससे combine होके क्या field आपके पास आती है, as well as the second topic is relating with the careers in biology. हम ये search करेंगे कि आपके पास biology से related कौन कौन से careers मौजूद हैं, यानी कि आप आगे future में किन careers में यानी कि field में काम कर सकते हैं. Okay class, now these are the objectives. Okay, the objectives are, by the end of this class, students will be able to understand relationship of biology with the other sciences, and the next one, select appropriate profession if in their future as well. Okay जी, so you have to select your future just on the basis of this class, just like a biology. ओके, सेकंड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से प्रोफेशन है हमारे पास बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो आप इसमें अपना फ्यूचर भी सोच सकते हैं क्लास. सो बेसिकली हियर यू विल फोकस टुवर्ड्स दीज थिंग. ओके क्लास, now we will focus towards the specific topic, which is the relationship of the biology with other sciences. बेटा यहाँ हम स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का हमारे पास किस तरह से रिलेशनशिप बनता है विद द अदर साइंसेस. अगर अदर साइंसेस की बात करें तो हमें पता है साइंसेस में जैसे आपके पास देयर इज एन एग्जांपल ऑफ द केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स. तो ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी भी करते हैं और आपके पास एक वैरायटी इसके अंदर मौजूद है. तो हम यहाँ सर्च करेंगे कि क्या रिलेशनशिप बनाता है बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास. नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स द बायोलॉजी एज वेल एज द अदर साइंसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजी एंड द अदर साइंसेस एज वेल. Okay, now the first one topic, which is the biochemistry. Basically, biochemistry is a combination of the biology as well as the combination of the chemistry as well. So there is an example of the this biochemistry, which is the photosynthesis process and the respiration process that occur inside a plant's body. Okay, the next one is the biogeography. Biogeography means bio means life. So basically, bio is the biology here, and it makes a relationship with another science, which is the geography. So basically, the biogeography is relating with the two subject, which is the biology as well as the geography as well. So there is an example for the biogeography is the distribution of organisms. So the examples for the biogeography is the distribution of organisms. We will focus towards it and the next slide. Okay, the third one is the physics. You know very well what's the name of the physics, and you are mostly aware of this term, which is the physics, which is a branch of the science. So आपके पास this is another combination of the biology as well as with the physics. So the combination of the bio and as well as with the physics, there is a combination biophysics. We call that biophysics. An example for this specific relationship between the biology as well as with the physics is the muscles and bones, means the movement of the bones. Okay, the next one is the mathematics. With the mathematics and in the relationship of the mathematics with the biology, it will form biometry. So which type of the field is this one? Biometry. What is the biometry? Biometry basically is a combination of the biology, means biology, and metry is relating with the mathematics, means there is an example for the data analysis. Data analysis means by the help of the mathematics we will observe the data
analysis for the research process of the biology. Okay, the last one is the economics. Okay, by the help of the economics, biology make another relationship between itself, means the biology, and as well as with the economics. So the example for the bioeconomics is the benefits and the losses of these one, of any business as well. Okay, now we will focus towards the relationship of biology with the other sciences. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस किस तरह से रिएक्ट करता है, यानी कि आपके पास क्या फॉर्मेशन होती है जब कोई बायोलॉजी दूसरे साइंस यानी कि दूसरे सब्जेक्ट या आपके पास साइंसेस की मौजूद हैं उससे रिलेशनशिप फॉर्म करता है और किस तरह से हम फील्ड में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ तो बेसिकली बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल ऑफ सब्जेक्ट. मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है आपके पास बायोलॉजी. मल्टी डायमेंशनल मीन्स आपके पास एंड लिंक विद द अदर साइंसेस, और इजीली जो होता है आपके पास लिंक कर जाता है विद द अदर साइंसेस जस्ट लाइक केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, physics and other sciences as well. So for example, the movement of animals follow the laws of motion in the physics. तो जब movement of animals read करते हैं तो definitely movement of animal is basically relating with the biology because there is a living organism which is the animal. So their movement is basically relating with the biology. But the movement of the biology follow the law of motion in the physics. So when you will start your subject as a physics, so you will learn about the laws of motion, so which is relating with the physics. So basically for the movement of the animals there are some laws which are relating with the physics are applicable and apply on this specific system which is the movement of the animals. So that's why we call the biophysics as well. Okay, the next thing is biology is considered as interdisciplinary sciences which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. Okay, biology is considered as the interdisciplinary sciences. Interdisciplinary sciences means which are relating, means here we talking about the biology. So basically biology is relating with other and many different branches of the sciences. So just like chemistry, physics, economy as well. सो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि एक बायोलॉजी जो आपके पास है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि इजीली जो होता है इसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं और ये इजीली जो है वो रिलेट कर जाता है विद अदर साइंसेस एज वेल. Okay, I hope it is clear to you class. Now we will focus over the first one which is the biophysics. Now what is the biophysics? Bio means the biology here and the physics is another relationship or other science. So the combination of the biology and the physics forms biophysics. Okay, the what is the biophysics actually? It is the branch of the science. ये क्या है? It's the branch of the science in which the laws and techniques of the physics are applied and explain the process of the life. So basically, as we already know about the law of motions, the laws of the motion which are relating with the physics. तो जब भी आप किसी एनिमल की मूवमेंट की बात करते हो तो जब आप स्टार्ट करोगे when you will start your subject physics, so you have to know some laws of motion over there. So these laws of motions are applicable on the specific process which are relating with the living organism just like the movement as well. So it is mainly relating with the biophysics. So it is a branch of the physics. ये क्या है? Physics की branch है. Physics की branch भी consider करते हैं, bio की branch भी consider कर सकते हैं, in which the law and techniques means वो laws, वो कवानीन and techniques जो हम physics में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वो apply करते हैं हम किस पे? एक biology पे. Biology means life पे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. सो बेसिकली बोथ कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म होता है किसका? बायोफिजिक्स का. ओके, द नेक्स्ट वन इज द रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स विद इन organism. So means by the help of the radio physics another branch of the physics relating with this one. So the रेडियो फिजिक्स क्या है? आपके पास एक ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स जिसको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं विच आर रिलेटिंग विद द फिजिक्स. रिमेंबर क्लास, इट इज रिलेटिंग विद द फिजिक्स. तो हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? फॉर आइडेंटिफाई द डिफरेंट मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड अवर बॉडी. सो कभी कभार कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं या उनकी डिटेक्शन के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करते हैं. तो रेडियो एक्टिव isotope is mainly relating with a branch of a specific physics which is the radio physics. So radio physics branch where the radioactive isotopes are used to trace the translocation means the movement. Translocation means यहाँ से move करना. So translocation of the different materials within the organism. किसी भी living organisms के अंदर किसी भी
आपके पास डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होना वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. ओके, नाउ व्हाट आर द रेडियो आइसोटोप्स बेसिकली? तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप से और क्या कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फॉसिल्स. हम ऐसी फॉसिल की एज भी आइडेंटिफाई करते हैं. व्हाट इज द फॉसिल्स, यानी कि जो हजारों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स हुआ करते थे उनकी बॉडी जो टर्न ओवर हो गई वो हमारे पास फॉसिल्स की सूरत में मौजूद है, तो हम उसकी एज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द कार्बन डेटिंग एज वेल, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा है कार्बन डेटिंग. सो यूजेस ऑफ द साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासाउंड रेसेस. अल्ट्रासाउंड में जो रेसेस यूज होती है, आपके पास लेजर टेक्नोलॉजी आपके पास है, shows the relation between the physics and well as with the biology. तो आपके पास अल्ट्रासाउंड, लेजर टेक्नोलॉजी, ये सब किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपके पास बायोफिजिक्स की, जिसमें रिलेशनशिप बनता है किसका, फिजिक्स का, और किससे, बायोलॉजी से. आई होप इट इज क्लियर टू योर क्लास. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट आर द रेडियोएक्टिव आइसोटोप? बेसिकली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर द unstable atoms of an element, unstable element, just like there is a imbalance of the neutron and as well as proton quantity in it. Okay, which are radioactive. Now the second one, which is the biometry. What is the biometry? Basically it is relating with the biometry. What is the biometry class? Bio means with biology and metry means it is relating with the mathematics. So the branch of mathematics which collect the data of living organism, it plays a very important role in our research. Now class, here we will focus towards the research. यानी कि जब भी आप बायोलॉजी के बारे में बात करते हो तो बायोलॉजी में भी हम रिसर्च करते हैं. So for the research processes we have to use some specific numbers, calculation and the analysis of the data as well. So basically द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, आपके पास ये किसकी ब्रांच है? बेसिकली आपके पास ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें आप रिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हो किसका, बायोलॉजी का रिलेशन. यू विल प्रोड्यूस हियर द रिलेशनशिप विद द बायोलॉजी एज वेल एज विद द मैथमेटिक्स. सो द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच कलेक्ट द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सपोज कीजिए व्हेन वी टॉक अबाउट द ज़ूलॉजी, तो ज़ूलॉजी के अंदर जो हम एनिमल्स कलेक्शन करते हैं, एनिमल कलेक्शन करने के बाद नाउ वी विल प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ इट. सो जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं, यानी कि आपने डेटा को जो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, याद रखिएगा here we talking about the biology. So biology relating with the living organisms. So basically living organism में आपके पास क्या है, जो भी आप उसका डेटा कलेक्ट करते जाओगे, so now you have to write or mention in a specific record. So for this recording you have to need मैथमेटिक्स. ऐसा ही है ना, आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी जब आप उसका डेटा कलेक्ट करोगे और उसको एक रिकॉर्ड फॉर्म करोगे. जस्ट लाइक देयर इज सम नंबर्स मींस देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. सो इन द फर्स्ट 3 to 4 days are required for the egg. So means 3 to 4 days means it is relating with the mathematics, means analysis and recording of any data. Just like pupa need 10 to 14 days, and as well as the adult butterfly required 14 to 35 days for an adult and mature butterfly. So basically it plays a very important role in our research. So research process mein biometry is a very play a specific and a great role in it. So basically here we can say that biometry is an important field, और आपके पास क्या है, branch है relating with mathematics. Okay, the next one is the chemistry class. Biochemistry is a combination of the biology as well as with the combination of the chemistry. Chemistry आपको biochemistry का मतलब क्या है, जिसमें आपके पास biology भी है और आपके पास में chemistry भी मौजूद है. Basically it is a branch of the biology. ये किसकी branch है? It is a branch, ये biology की branch है which deals with the study of the molecules. Now here you will study about some type of the molecules which form the living organism of the cell and require authentic knowledge about the biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and the function of different molecules in the body of an organism. तो बेटा यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को किससे, किसी भी केमिस्ट्री से. केमिस्ट्री मीन्स द कॉम्बिनेशन एंड द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओवर हियर. सो मॉलिक्यूल, जब भी हम आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एज वेल. तो उसका कॉम्बिनेशन आपके पास, जैसे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है. सो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं. अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और इसमें अब यूज होता है, हमको पता है. तो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो मॉलिक्यूल आया कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम द रिलेटिंग विद द केमिस्ट्री, क्योंकि ये आपके पास उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. सो वो कंबाइन होता है, इट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल. नाउ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर विल बी जनरेटेड हियर.
and this molecule will be used in a process of the living organism relating with the photosynthesis. तो photosynthesis के अंदर हम इसको यूज करते हैं वाटर को, यानी कि प्लांट्स यूज करते हैं वाटर को. वाटर कहाँ से आया है? मेन रिलेटिंग विद दी केमिस्ट्री, यानी कि मॉलिक्यूल से रिलेट करता है आपके पास. और आपकी बॉडी के तो यूनिट मौजूद है, यानी कि सेल्स जो मौजूद है बिल्कुल यूनिट सेल, वो भी आपके पास इनिशियली बेसिस जो आपके पास फर्स्ट स्टेज होता है वो मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनता है. मॉलिक्यूल्स में आपके पास एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं. बेसिकली इट इज मेनली रिलेटिंग with the chemistry as well. So there is a biochemistry combination of the biology as well as with the chemistry. Bio means biology, जिसके अंदर हम live यानी कि living organism की स्टडी करते हैं, यानी कि प्लांट की स्टडी करी है हमने, उसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस की स्टडी करी है with the relationship of the chemistry. I hope it is clear to you class. Now the next one is the बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो बेसिकली here we will study about the specific animals and their location and areas as well. Okay, bio means biology, means relating with the is a combination of the two subject, means the bio means biology here, and geography means relating with the geo means land, जमीन. ठीक है जी, जगह, जहाँ पे इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये किससे डील करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, देयर इज अ कॉम्बिनेशन, मींस प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द काइंड्स ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स किस किस जगह पर मौजूद हैं, किस किस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज रिलेटिंग विद द बायोजियोग्राफी. बायो क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है. जियोग्राफी मींस उनका लैंड एरिया, उनका रीजन जहाँ पे वो मौजूद होते हैं. तो इसे बेसिकली रिलेट विद द बायोजियोग्राफी. इसमें हम इसको हम किस में लेकर आते हैं? बायोजियोग्राफी में लेकर आते हैं, जहाँ पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एरिया, उसके रीजन के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर रीजन और एरियाज कैसा है. Many living organisms are restricted to particular geographical region due to the environmental condition. So basically, many living organisms are restricted. What is the meaning of the restricted? Restricted का मतलब है आपके पास restricted कि आपके पास कुछ animals या plant ऐसे हैं जो आपके पास किसी और जगह या region या area के ऊपर survive नहीं कर सकते इसीलिए. Just here is an example of a polar bear. Polar bear required as very low temperature to exist any condition. सो बेसिकली आपके पास पोलर बियर जो होता है उसको बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर एग्जिस्टेंस, अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सके. सो अगर हम उसका रीजन या इलाका या सिंपली हम कहते हैं उसका एरिया जो है, लोकेशन अगर हम चेंज करते हैं, उसको ऐसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर हाई है, सो डेफिनेटली जो आपके पास पोलर बियर कांट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बेसिकली हम क्या कहेंगे कि उसकी जो स्पीशी है वो खत्म भी हो सकती है. सो इट्स अ डेंजर. तो बायोजियोग्राफी में हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे एनिमल्स है, कहाँ मौजूद है, किस एरियाज के अंदर मौजूद है, और किन एनिमल्स, किन प्लांट्स को किस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए. Okay, I hope it is clear to you class. Now the next one is the bioeconomics. Bioeconomics means bio means biology, economics means economy, means relating with the economy. So there is a combination of the two things, which is the bio means biology and economy means the combination is the bioeconomics. Now class, the next one is the deal bioeconomics. क्या पढ़ते हैं bioeconomics में? It deals with the economical important organism involved in the production, just like meat production, the sectors and the calculation of the food वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू. सो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी को इकोनॉमी से. इकोनॉमी क्या है आपके पास? तो बेटा इकोनॉमी आपके पास क्या है? इकोनॉमी मीन्स कि किस तरह से आप प्रॉफिट या लॉस का स्टडी कर रहे हो, तो यानी कि आपको किस तरह का प्रॉफिट मिलता है, आपके पास लॉस हो रहा होता है, ये आपके पास जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड एक बड़े प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी में रीड करते हैं. तो बेसिकली इसमें हम ये रीड करते हैं कि इट डील्स विद द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, यानी कि हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का चूज करते हैं जो इकोनॉमिकल वेरी इंपॉर्टेंट है. यानी कि कुछ ऐसे एनिमल जैसे अगर आप किसी एनिमल्स यानी कि काऊ की बात करो तो उससे आप मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकते हो, मिल्क आपको मिल सकता है, उसका मीट मिल सकता है, और मिल्क से आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो. तो इकोनॉमिकली जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा काऊ है क्या? क्या इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेट करते हैं कि वो हमें कितना बेनिफिट दे रही है या कितना लॉस हमको आ रहा है. तो इट इज मेनली रिलेटिंग विद द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि वो एनिमल, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर मेनली रिलेटिंग और इम्पॉर्टेंट
टू इकोनॉमी, यानी कि हमें इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कैसे हमें वो इम्पोर्टेंस देगा, वो आप इसमें रीड करते हो, बायो इकोनॉमिक में रीड करते हो. आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास. Okay, now we will focus towards another topic, which is the which is subtopic of this chapter, Introduction to Biology. The subtopic is the carriers in biology. Now you have to focus towards this topic as well. Class, carriers in biology means अगर आप biology select करते हैं तो in a future आपके पास कौन कौन से carriers होंगे काम करने के लिए, यानी कि कौन से fields में आप easily अपना work perform कर सकते हैं. So there are some specific carriers that अगर आप चूज करना चाहो तो कर सकते हो. द नेक्स्ट फर्स्ट वन इज द मेडिसिन एंड सर्जरी. Okay, you know very well about it. The MBBS means the bachelor's in the medicine and the bachelor in the surgery. It's the combination of the MBBS. तो ये आपके पास एक फील्ड है. The next one is the forestry, which is relating with the forest. Fisheries आपके पास है. बायोटेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हो. फार्मिंग आप कर सकते हो. एग्रीकल्चर ज़राअत का पेशा है. एक आपके पास हॉर्टिकल्चर विच इज रिलेटिंग विद द एग्रीकल्चर. एनिमल हस्बेंड्री यानी कि रिलेटिंग विद द एनिमल्स in their production, their breeding as well. And the last one is the pharmacy, which is relating with the medicine and their formations and their chemical formulas as well. So now we will focus towards the first career. Now starts class. आपका कैरियर स्टार्ट होने वाला है. सो कैरियर इन द बायोलॉजी. सो द कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स इज सब्जेक्ट टू रिटेन ऑब्टेन अ स्पेसिफिक डिग्री, यानी कि जब आप किस बायोलॉजी लेते हो तो यू हैव टू रिसीव योर डिग्री आफ्टर अ सर्टेन टाइम. तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे और एक आपके पास डिग्री आपके पास मौजूद होगी. अब नाउ यू हैव टू चूज विच टाइप ऑफ डिग्री दैट यू विल सिलेक्टेड है. आप कौन सी डिग्री सिलेक्ट करोगे अपने फ्यूचर अपने कैरियर के लिए. तो फर्स्ट वन टॉपिक एंड द फर्स्ट वन कैरियर इन द बायोलॉजी इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मेडिसिन एंड सर्जरी. ओके, व्हाट इज द मेडिसिन एंड व्हाट इज द सर्जरी? बोथ आर द डिफरेंट क्लास. सम डॉक्टर्स आपके पास क्या होते हैं, वो मेडिसिन भी कर रहे होते हैं, सर्जरी भी कर रहे होते हैं. मेडिसिन MBBS रिलेटिंग विद द बैचलर इन मेडिसिन एज वेल एज बैचलर इन द सर्जरी. सो दोनों काम साथ भी किए जा सकते हैं, कुछ अलग भी किए जा सकते हैं. मीन्स डिपेंड करता है कौन सा डॉक्टर आपके पास किस में प्रोफेशनल है. सो द मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस एंड द सर्जरी. सो नाउ हियर वी विल फोकस टूवर्ड्स, अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में बेटा आप जो डॉक्टर आपके पास डायग्नोस करता है और ट्रीटमेंट करता है स्पेसिफिक डिसीज कहते हैं बीमारी को. तो इन ऑफ मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन फील्ड में जाते हैं यानी कि इन फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर जब आप बन जाते हो तो उसमें आप क्या पढ़ रहे होते हैं, वो आपसे रिलेट करता है कि किसी भी डिसीज की रिकॉग्निशन, यानी कि आप आइडेंटिफाई करो. आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाती है? डायग्नोसिस कहलाती है ना. मेडिसिन वे या मेडिसिन लाइन है उसको क्या कहते हैं? डायग्नोसिस. यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो डिसीज है क्या पेशेंट को, एंड नाउ यू हैव टू ट्रीट इट. अब आपने उसको क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है. सो द सेकंड थिंग इज द सर्जरी. सर्जरी क्या है बेटा? द सर्जरी डील्स विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड द रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन. सो याद रखिएगा मेडिसिन आपके पास क्या है? मेडिसिन में सिर्फ आप रिकॉग्नाइज करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, डायग्नोस करते हो डिसीज को, एंड यू विल स्टार्ट अ स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ओवर देयर फॉर द स्पेसिफिक डिसीज. बट इन अ सर्जरी, सर्जरी में हम क्या करते हैं? बेसिकली सर्जरी रिलेट और डील्स विद द रिपेयर. रिपेयर मींस समथिंग इज अ वाउंड. कोई आपको जख्म होता है तो उसको रिपेयर किस तरह से किया जाता है? जस्ट लाइक अ एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट के अंदर आपके पास कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं वो डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करना बाय द हेल्प ऑफ द सर्जरी. दूसरा सर्जरी से क्या किया जा सकता है? रिप्लेसमेंट किया जाता है. रिप्लेसमेंट मतलब एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना. यानी कि किडनी फेलियर हो गया, सपोज किडनी फेलियर, तो आप यू हैव टू रिक्वायर्ड अ किडनी. अच्छा, किडनी जो आपके पास होता है वो दैट्स इल लेकर के आपको कहीं से मिल जाए, लेकिन रिलेशनशिप में यानी कि रिलेटिव्स में हम फिर भी जो होता है किडनी दे देते हैं. तो किडनी से रिलेटेड आप रिप्लेस करोगे किडनी, यानी कि एक किडनी निकाल के दूसरी किडनी आप रिप्लेस करते हो. दैट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग विद द सर्जरी एंड वी कॉल दैट प्रोसेस रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेस करना. द थर्ड वन इज द रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन. रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन मींस आपकी अपनी बॉडी समटाइम एबनॉर्मली बिहेव करती है, जस्ट लाइक ड्यू टू द रेडिएशन. रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स डेवलप कर जाते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं. तो ट्यूमर आपके पास बेटा क्या है? होते तो आप ही की बॉडी के सेल हैं, लेकिन वो एबनॉर्मली इस तरह से परफॉर्म करने लग जाते हैं कि वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. व्हाट आर द कैंसर सेल? कैंसर सेल्स वो सेल्स होते हैं बेटा जो रैपिडली ग्रो करते हैं और इतनी तेजी से ग्रो करते हैं विच आर नॉट इन अ नॉर्मल वे.
तो दे विल फॉर्म अ स्पेसिफिक ट्यूमर, तो उसको रिमूव करना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि वो सर्जरी में आप रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन को रिमूव भी किया जा सकता है ताकि वो कैंसर आपकी बॉडी में फैल ना जाए। आई होप इट इज क्लियर टू योर क्लास। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स अनदर कैरियर इन द बायोलॉजी एग्रीकल्चर। मीन ज़रात से रिलेटेड, आपके ज़रात आपको पता है, ठीक है जी, आपने अच्छे से देखा है एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, डिडीज विद द प्रोडक्शन ऑफ द वराइटीज ऑफ क्रॉप। डेफिनेटली इट इज रिलेटिंग विद द क्रॉप्स। हम यहाँ पे फसलें लगाते हैं, क्रॉप्स हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमको यहाँ से मिलते हैं, एक्सेट्रा। पाकिस्तान बीइंग एज अ एग्रीकल्चर कंट्री, इट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इट। एग्रीकल्चर क्लास सबको पता है एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि इसके अंदर अगर आप बायोलॉजी सेलेक्ट करते हो तो इन फ्यूचर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सो इसमें आप जा सकते हैं। इसमें आपके पास किस तरह से क्रॉप्स आपने डेवलप करनी है, किस तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आप प्रोड्यूस करवा सकते हो, मींस बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल्स, सो सेक्टर्स in this way the Pakistan being as agriculture country, it can play a very important role as well. So I hope it is clear to you class. So the next one is the horticulture. Horticulture basically also relating with the agriculture, but in a minute, means but in a very little way. So in this is also a part of the agriculture. तो ये किसका part है, ये भी agriculture का part है, in which जिसके अंदर आप work करते हो, you have to perform your work and carry it out for the development of the new varieties of the plant and their products as well. मीन जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो, एग्रीकल्चर इज द वास्ट फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसमें एक मिनिमाइज अगर हम उसको करते हैं, दैट इज द हॉर्टिकल्चर व्हिच इज रिलेटिंग विद जस्ट रिलेटिंग विद द प्लांट्स। मींस के प्लांट्स को किस तरह से डेवलप किया जाए और उसकी कैसे न्यू वैरायटीज आपके पास लेकर आई जाए, तो ये इट इज मेनली रिलेटिंग विद दी हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में बेटा आप क्या पढ़ते हो, ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड, ज़राअत से ही रिलेटेड, बट किसी छोटे पैमाने पे, मीन्स यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ डील्स करोगे कि उसको, यू हैव टू डील्स विद द प्लांट, सो इट इज द also the part of the agriculture in which your work, you will perform your work and carry it out the development of the new varieties of plant. Now you will develop, produce, start means आप यहाँ पर अपनी कोशिश करेंगे कि किस तरह से न्यू वैरायटीज लाई जा सकती हैं प्लांट्स के अंदर, एंड यू और उसकी प्रोडक्ट्स को किस तरह से मतलब इन्हेंस किया जा सकता है, उसके प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज लेकर आया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू क्लास। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट्री. The word forestry definitely relating with the forest class. सो फॉरेस्ट्री आपके पास एक और कैरियर है अगर आप बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं और फॉरेस्ट्री के अंदर जाते हैं। फॉरेस्ट्री मीन्स जो आपके पास फॉरेस्ट से रिलेटेड, यानी कि आप फॉरेस्ट में काम कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो फॉरेस्ट जो है बेटा, फॉरेस्ट आपके पास क्या, फॉरेस्ट इज द सोर्स, एक जरिया है, किसका जरिया है बेटा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स की और एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी का जरिया है फॉरेस्ट। बायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? ओके, सो बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल। सो यहाँ पर अगर फॉरेस्ट मौजूद होंगे तो फॉरेस्ट बनते कैसे हैं, प्लांट, डेफिनेटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स। सो बायोडाइवर्सिटी, देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड देयर, सो डेफिनेटली वहां पर इजीली आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी प्लांट्स की, और प्लांट्स की मौजूदगी की वजह से, एज वी नो, जब प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसकी वजह से एनिमल्स की वहां पर प्रेजेंस डेफिनेटली होगी। तो आपके कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स होंगे, जो उन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, कुछ बड़े एनिमल्स ऐसे होंगे जो उन छोटे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। सो आपके पास एक चेन प्रोड्यूस होगी। चेन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट का प्रोड्यूस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास यू हैव टू फोकस ओवर द फॉरेस्ट्री। अगर फॉरेस्ट्री में जाते हो तो फॉरेस्ट एक बेहतरीन जरिया है बायोडाइवर्सिटी का, जिसमें आपको वैरायटी देखने को मिलेगी प्लांट्स की, और वहाँ प्लांट्स की मौजूदगी के अंदर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी एनिमल्स की। सो हियर वी विल फोकस टुवर्ड्स द biodiversity and the plants and animals of many kinds which live there, यानी कि जो वहाँ रहते हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। अच्छा ये बेटा यहाँ दो बातें की गई हैं। द फर्स्ट वन इज द इट इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप ऑफ न्यू फॉरेस्ट। डेफिनेटली जो फॉरेस्ट हमारे पास पुराने मौजूद थे, हमें अच्छे से मालूम है कि कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, तो सिर्फ उनको प्रिजर्व करना ही काफ़ी नहीं है। यू हैव टू डेवलप सम न्यू फॉरेस्ट। तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप फॉरेस्ट्री फील्ड में जाते हैं, कैरियर में जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप न्यू फॉरेस्ट
की डेवलपमेंट भी करें, यानी कि नए फॉरेस्ट भी बनाएं, एज वेल एज दूसरी चीज क्या है, और प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो पहले से प्लांट्स और एनिमल्स वहां मौजूद है उनकी प्रिजर्वेशन करें। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स क्लास हमारी दुनिया में रह गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल की स्पीशीज हैं जो खत्म होती जा रही हैं। सेम एज इट इज कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बेनिफिशियल है, लेकिन जो स्पीशीज है उनकी वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो हम उनको एक ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो उसमें एग्जिस्ट कर सकें और अपनी जो जनरेशन है उसको आगे, यानी कि एग्जिस्ट कर सकें, अपनी स्पीशीज को इंक्रीज कर सकें। जस्ट लाइक पोलर बेयर जो है बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, इवन कि इसकी जो आपके पास स्पीशीज है खत्म होती जा रही है। जस्ट लाइक एन एलिफेंट, अगर आप पाकिस्तान में देखो एलिफेंट आपको नहीं मिलेगा बेसिकली, और हम इसको जहाँ से डेफिनेटली दूसरे कंट्री से हम मंगवाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है एलिफेंट की बहुत की स्पीशीज जो है वो खत्म होती जा रही हैं। तो हमें क्या करना है, फॉरेस्ट्री के साथ साथ प्लांट की प्रिजर्वेशन भी करनी है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, एज वेल एज एनिमल को भी यहाँ प्रोटेक्ट करना है। सो नाउ द नेक्स्ट which is a field relating with the biology is the farming. Farming क्या है क्लास, आपको सब पता है, farming means relating with the farms, farm से relating है। अगर आप फार्म्स में काम करते हो तो आप किस में काम कर रहे हो, यू हैव अ प्रोफेशन ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग प्रोफेशन में हम क्या पढ़ते हैं, इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स को बना सकते हो, यानी कि डेवलप कर सकते हो। अच्छा, फार्म्स किस किस तरह के बनाए जा सकते हैं, तो आपके पास फार्म्स टेक्स प्लेस, यानी कि सच एज फिश फार्म, यानी कि दिस वन, यानी कि फिशेस का फार्म बना सकते हैं आप। कैटल फार्म, यानी कि मवेशी का जो फार्म है वो आप कैटल फार्म बना सकते हैं। पोल्ट्री फार्म, यानी कि जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह होती हैं वो आप पोल्ट्री फार्म भी डेवलप कर सकते हो बाय टेकिंग दिस स्पेसिफिक प्रोफेशन विच इज़ द फार्मिंग। सो इसमें आपके पास वैरायटी है जो आप सूट करो। अच्छा, फार्मिंग मीन्स रिलेटिंग है कि आपने जो जिसका आप चूज करोगे, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे आपके पास कैटल फार्म है या फिश फार्म है, तो आपने उनको उनकी ग्रोथ करवानी है, उनकी डेवलपमेंट आप देखोगे, उनकी ग्रोथ को देखोगे, उसको उनको अच्छी फीड प्रोवाइड करोगे, और उनसे डेफिनेटली आपको इकोनॉमिकल भी इसमें गेन होगा। तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो कि उसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर काम किया जा सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की फील्ड है इन बायोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर एंड वुड। अच्छा, बेसिकली क्लास फार्मिंग का जो प्रोफेशन है इसमें हम कुछ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि वो बहुत सारी न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल को प्रोडक्शन के लिए, एनिमल की प्रोडक्शन के लिए, जैसे यानी कि हम अपनी सोर्स को फुलफिल कर सके। जैसे हमें मीट की ज़रूरत है, मिल्क की ज़रूरत है, लेदर और वूल की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा ना। तो एनिमल्स ज़्यादा होने चाहिए, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने चाहिए। सो द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायर्ड के लिए, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए आपको कुछ न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो न्यू टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं विच आर आल्सो रिलेटिंग विद दिस फार्मिंग, तो इसमें हम फार्मिंग में ही, प्रोफेशन में ही हम न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमल्स की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बोलूँ, एनिमल की प्रोडक्शन मतलब क्या, एक एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हो कि जो एक एग होता है, हैंस का जो एग होता है, तो उसमें आपके पास क्या है, वो उसको बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है कि उसके अंदर से चिक जो है वो बाहर आए। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ सम न्यू टेक्निक्स, हम क्या, टेक्नोलॉजीज हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, एक ऐसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं कि जो उसके अंदर जो चिक है वो बहुत जल्दी बाहर निकल कर आ जाता है इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो मीन्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल इन अ मिनिमम टाइम, सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फार्मिंग एज वेल। सो नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स अनदर which is the animal husbandry. Basically it is relating with that, it is a profession। ये जो प्रोफेशन है बेटा आपके पास वो एग्रीकल्चरल साइंस से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर साइंस से बात है, एग्रा से रिलेटेड करता है। इट डील्स विद द केयर एंड द ब्रीडिंग ऑफ द एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन। डेफिनेटली यहाँ हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स की ही बात करेंगे, किस तरह से इस प्रोफेशन में हम एनिमल्स, यानी कि हम कैटल फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो हम उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि उसकी केयर करेंगे, जो एनिमल्स हमारे पास मौजूद होंगे। केयरिंग के साथ साथ उन सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है कि उसकी ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स के ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन, यानी कि नंबर ऑफ आपके पास जो स्पीशीज हो उनको इंक्रीज किया जा सके। तो इसमें आप एनिमल हस्बेंड्री में भी काम कर सकते हैं।
Now the fisheries is basically relating with the fishes, यानी कि this profession is deals with the increased quantity and quality of the fish production. Fish is the one of the most the best source of the protein. याद रखिएगा बेटा, जब भी प्रोटीन की कमी होती है तो हम फिश का इस्तेमाल करते हैं. So basically fish is the best सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो बेस्ट सोर्स आपके पास फिश है प्रोटीन का. तो फिश की प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, अगर ये आप जब फिशरीज सेलेक्ट करते हो एज अ प्रोफेशन तो आपको पता चलेगा. तो प्रोफेशन में जो हम यहाँ यूज करते हैं फिशरीज में, आप क्या करते हो, किस तरह से फिशेस की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए, ऐसी नई प्रोसेस और टेक्निक्स लेकर आई जाए, और कैसे उनकी क्वालिटी को भी इंक्रीज किया जा सके जिससे हम फिश को प्रोड्यूस करवाते हैं. तो इसमें आप फिशरीज में काउंट करते हो. बायोटेक्नोलॉजी इज मेनली रिलेटिंग विद द बेटा बायोटेक, यानी कि बायोलॉजी में आप ऐसी टेक्निक्स लेकर आए जिससे आप ऐसी चीजें डेवलप कर सको जो ह्यूमन लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक इंसुलिन, अगर एग्जांपल, तो इंसुलिन आपके पास कैसे बना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. तो इंसुलिन से बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट. सो डायबिटिक पेशेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कहाँ से आया है, बायोटेक्नोलॉजी से. यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी यूज की थी. सो यहाँ पर हम डेफिनेटली इंटरफेरेंस, ये भी आपके पास एक तरह का हार्मोन है, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स एज वेल. तो बहुत सारे कुछ हार्मोन्स आपके पास हैं, वो कहाँ से, समटाइम हम बैक्टीरिया से भी मिलते हैं या आपको हार्मोन्स. तो इसमें आप किस में रीड करते हो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रीड करते हो, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपको बेनिफिट दें, जो आपकी हेल्प कर सकें किसी भी डिसीज से लड़ने या फिर आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने में. तो इट इज मेनली रीडिंग विद द बायोटेक्नोलॉजी. Now class, there's a chapter number 1 which is a introduction to biology. There's a home task. Okay, the home task first class का जो home task था, 1 question number 1 2 3 I also mentioned here, ये वो वाला है. The second today's class is written 1 2 3 is a today's class. तो मैंने combine कर दिया दोनों को. So home task is the first one, define biology with its major डिवीजन. आप बायोलॉजी डिफाइन करेंगे, उसका डिवीजन डिफाइन करेंगे. मेन डिवीजन थे जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी. सेकंड आप एक्सप्लेन करोगे अदर ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस आपकी बुक में गिवन थी आप उनको डिफाइन करोगे एज वेल एज क्लास. You have to learn it. You have to learn it. Third one is the differentiate between the morphology and anatomy. In morphology और anatomy का आपको डिफरेंस बताना है. अच्छे से याद है, एक्सटर्नल और इंटरनल हम रीड आउट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इसके अंदर. उसके बाद बेटा टुडेज टास्क इज द एक्सप्लेन हाउ बायोलॉजी रिलेट विद अदर साइंसेस, किस तरह से बायोलॉजी रिलेट करती है दूसरे साइंसेस से. इसके बाद है बेटा हाउ फार्मिंग प्रोफेशंस हेल्प मैनकाइंड, किस तरह से फार्मिंग का जो प्रोफेशन है वो यानी कि मैनकाइंड यानी कि इंसान की हेल्प कर सकता है, एक अच्छा प्रोफेशन साबित किया जा सकता है या हो सकता है. सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, हाउ न्यू वैरायटीज ऑफ प्रोड्यूस, के अंदर कैसी न्यू वैरायटीज को प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स एज वेल. सो यू हैव टू राइट इट. नाउ there are some instructions for the copy presentation class. Copy कैसे present करोगे, I repeated, you have to cover your book as well as your copy with the transparent plastic sheet. उसके बाद outer face sheet आप complete करोगे where you have to mention student name, father name, class, section, roll number, subject and school name as well. Now you will have to move towards the inner face sheet. Inner face sheet क्या होती है बेटा, जो आप copy जैसे open करते हो उसका जो first page है that's the inner face sheet. उसमें आपने you have to mention your name, your father name, class, section, roll number, subject, your subject teacher name as well as your class teacher name, class. Now you will have to make a title page to the first term title. याद रखिएगा बेटा first term title page बनेगा, it's not relating with the mid term title page. So first term title, you have to make a first term title page and mention their specific month means August to November. So year is 2021 to 2022. So the next one is that you have to make a title page for the unit and after it you have to make a margin over there. Thank you class.